How are you all? I believe you guys have read the textbook, whatever I had asked you to read, and today we'll almost complete the chapter. Yeah, we'll try to finish it actually. Mendel's laws of inheritance is the next topic that we'll study. So, we have studied monohybrid cross, yes, the way he performed the experiments, and we have also studied dihybrid. Yes, monohybrid is nothing but study of one characteristic at a time, and dihybrid is study of two characteristics at a time, correct? और ट्राई हाइब्रिड भी हो सकता है, स्टडिंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 1000 कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम, लेकिन इतना करना not possible. But just from these 2-3 experiments that he performed, yes, see हमने तो सिर्फ size of the seed पे देखा, shape of the seed and color of the seed, but he tried it on flowers, he tried it on shape, size, height of the tree, everything. हर चीज पे बार बार एक्सपेरिमेंट करके सेम रिजल्ट्स मिले. So he made 3 laws, yes, of inheritance. Very important 3 laws. I have taken the screenshot from your textbook as it is because it is important for you to understand the wordings also. जो लिखा है उसका wording समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा तुमको. The first law is called as law of dominance. Law of dominance. See, in simple words, ठीक है, एक कैरेक्टर डोमिनेटिंग रहेगा, दूसरा रेसेसिव रहेगा, बात खत्म. वन ऑफ द ट्रेट्स विल बी डोमिनेटिंग, विल बी डोमिनेंट, एंड द अदर ट्रेट विल बी रेसेसिव. डोमिनेंट और रेसेसिव कौन होता है? ट्रेट्स होते हैं. डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट्स होते हैं एक कैरेक्टर के. सी, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक के ट्रेट्स होते हैं. So if you consider two characteristics, one characteristics, उसके दो traits है. For example, tall, short. These are the two traits. तो उसने बोला इसमें से सिर्फ एक ही हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा, या तो tall या तो short, कोई भी, और दूसरा वाला रेसेसिव रहेगा. The other one is suppressed, दब जाता है ना. जैसे अगर तुम्हारे बड़े भाई है तो बड़े भाई तुमको सप्रेस करते हैं, बड़े भाई डोमिनेटिंग होता है. यस और नो? करेक्ट. सो तुम्हारी चलती नहीं है. फिर यू आर देयर, यू आर प्रेजेंट, है ना, तुम्हारा ओपिनियन शायद पूछेगा वो, लेकिन सुनेगा नहीं. समझ में आ रही है बात? सो सी, आउट ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन्स सप्रेस्ड. जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट रहेगा, जो सप्रेस हो जाएगा उसको रेसेसिव बोला जाता है. The one that expresses is dominant and the unexpressed one is called as recessive. Yes, the recessive character can express only when the pair consists of both recessive, homozygous recessive. Yes, recessive कब दिखेगा? When will recessive be able to express itself? Yes, when both are recessive, like small t. जब ऐसा है ना तभी ये दिखेगा, अदरवाइज द रेसेसिव वन कैनॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ. ओनली द डोमिनेटिंग वन विल बी एक्सप्रेस्ड. एक्सप्रेस्ड मतलब जो दिखता है. एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है जो दिख रहा है उसको हम बोलेंगे दिस कैरेक्टरिस्टिक इज बीइंग एक्सप्रेस्ड. ये दिख रही है हमको कैरेक्टरिस्टिक. क्लियर है? बात समझ आ रही है? सो द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट वंस अगेन, in a particular characteristic, one of the traits is dominant, the other is recessive. Rather, one is expressed, yes, and the other is suppressed. जो एक्सप्रेस हुआ उसको डोमिनेंट बोलेंगे, yes, और जो सप्रेस हुआ उसको रिसेसिव बोलेंगे. क्लियर है? The recessive can be expressive if it is a homozygous pair of both recessive, जैसे small t, small r, yes, green, small y. अगर ये दोनों भी homozygous recessive pair होगा
then only it can be expressed, otherwise it is always remain suppressed if it is heterozygous. जैसे एक T और एक T है तो भी ये बेचारा सप्रेस हो जाएगा, सिर्फ ये एक्सप्रेस होगा, सो टॉल दिखेगा हमको. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो उसने उसके एक्सपेरिमेंट्स पे से कंक्लूड किया. यस, द सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? It is also called as the law of purity of gametes. Law of purity of gametes. See, ये भी सीखा है हमने, बट यहाँ से वर्डिंग समझो. The two members of a pair of factors separate during formation of gametes. हाँ कि नहीं? देखो, कैपिटल R स्मॉल r था. Yes, this is a characteristic of being round. Capital R is for round, small r is for wrinkled. ठीक है. जब गैमेट्स फॉर्म होगा तो कैपिटल आर अलग हो जाएगा, स्मॉल आर अलग हो जाएगा. दे सेग्रीगेट. सेग्रीगेट मतलब सेपरेट. हाँ कि नहीं? जैसे ह्यूमन में ले लो, इन अ मेल एक्स वाई होता है, जब गैमेट्स फॉर्म होता है तो एक्स अलग हो जाता है, वाई अलग हो जाता है. हाँ कि नहीं? यस, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. Everybody has got a pair of factors. सेल में पेयर ऑफ फैक्टर्स होता है, लेकिन जब मायोसिस होता है ना, तो ये पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट हो जाता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स. दैट इज स्पर्म्स एंड एग जब फॉर्म होता है तो सेपरेट हो जाता है. करेक्ट? दे डू नॉट ब्लेंड बट सेग्रीगेट और सेपरेट इनटू डिफरेंट गैमेट्स. दो अलग अलग गैमेट्स में सेपरेट हो जाता है. जैसे हमने देखा था एक्स वाई, तो ये एक स्पर्म है, इसमें एक्स आ जाएगा, ये एक स्पर्म है, इसमें वाई आ जाएगा. दे डू नॉट ब्लेंड, ऐसा मिक्सचर नहीं होता उनका, कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है. द गैमेट्स कंबाइन टुगेदर बाय रैंडम फ्यूजन एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन. देखो, ये एक गैमेट और ये फीमेल का गैमेट. यस, दे कंबाइन टुगेदर फाइन ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, और फिर अगेन या तो XX या तो XY हो जाएगा इन द न्यू जाइगोट दैट इज फॉर्म्ड. यस, तो देखो, जैसे ये RR है, ठीक है, ये फादर, फाइन, ये मदर. मदर का भी लेट्स से RR है, तो मदर का ये R और ये R सेपरेट हो जाएगा ड्यूरिंग मायोसिस, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त. फिर फ्यूजन जब होगा तो हो सकता है यहां से ये आर आएगा और यहां से ये आर आएगा, और फिर वापस एक हो गए वो, मतलब वापस पेयर बन गया उसका. फाइन. सो द गैमेट्स कंबाइन टुगेदर बाय रैंडम फ्यूजन एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन. क्लियर है? या तो कैपिटल RR हो जाएगा, या फादर से कैपिटल आया, मदर से स्मॉल r आया, तो वापस पेयर बन जाएगा. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यस, the pair gets separated. Two members of the pair of factors, ना ये factors है ना, traits, ये separate हो जाती है. Clear है? second law. And the third law of Mendel's third law of inheritance, law of independent assortment. Independent assortment, ध्यान से समझो इसको. When there are two pairs of characteristics, the distribution of the alleles of one character into the gametes is independent of distribution of alleles of the other character. देखो, हमने दो कैरेक्टर कल देखा था. एक था राउंड एंड येलो, यस, रिंकल्ड एंड ग्रीन. ठीक है, तो इसको हमने बोला था कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y. फाइन. और इन दोनों का अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं लेट्स से, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन, सपोज स्मॉल r एंड स्मॉल y. तो देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, ये कैपिटल R और ये कैपिटल R में सेपरेट होगा, है ना, ये कैपिटल Y और ये कैपिटल Y में सेपरेट होगा. दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ऐसा सेपरेशन होने वाला है इनका, कैपिटल Y
capital Y. Now what does the law of independent assortment says that, देखो ये कैरेक्टर है, राउंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक, शेप इज अ कैरेक्टरिस्टिक एंड कलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक. सो गाइज जब वन और मोर टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, देखो टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज शेप का कैरेक्टरिस्टिक आर आर, ये पेयर हो गया ना आर आर, तो वन पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, और येलो वाई वाई कलर इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक. व्हेन टू और मोर पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में आते हैं, यस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स ऑफ वन कैरेक्टर इनटू द गैमेट्स is independent of the distribution of the allele of other character. बात समझो. yes, अगर मैं ऐसे लेता हूं, let's say small r और ये लेता हूं, let's take this. yes, अब जो गैमेट बना, let's say ये एक गैमेट बना, सेल स्पर्म सेल ले लो, एक ये स्पर्म सेल है, एक ये स्पर्म सेल है, एक ये स्पर्म सेल बना, एक ये स्पर्म सेल बना. ठीक है, अब इसमें से इसके अंदर आया कैपिटल आर. यस, तो इट इज इंडिपेंडेंट. यहां से क्या आया, कलर को उससे कोई लेना देना नहीं है. यहां से कैपिटल वाई भी आ सकता है, अगर आर आया तो यहां से स्मॉल वाई भी आ सकता है, हाँ कि नहीं. यस, सो वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कैरेक्टर कंप्लीटली. yes, one character is completely independent of the other character की क्या आने वाला है. let's say यहां से small r आया, yes, तो कैपिटल y भी आ सकता है, स्मॉल y भी आ सकता है. getting the point? so it is completely independent. दो कैरेक्टर्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है. ऐसा नहीं होता कि अगर राउंड आया तो इधर से येलो ही आएगा, राउंड आया तो इधर से ग्रीन कैरेक्टर ही आएगा. नो, दे आर बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स से गैमेट के अंदर क्या आने वाला है, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब देखो वापस, व्हेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स ऑफ वन कैरेक्टर इनटू अ गैमेट, देखो वन पेयर इनटू अ गैमेट, क्या आया, यहां से कैपिटल आर आया, लेट्स से, यस, is independent of the distribution of alleles of the other character. दूसरे कैरेक्टर के एलील को उससे कोई लेना देना नहीं है. yes, यहां से कुछ भी आ सकता है, यहां से भी कुछ भी आ सकता है. समझ में आया? there is no dependency of one character on other, कि अच्छा यहां से रेड आया तो यहां से ग्रीन, यहां से राउंड आया तो यहां से येलो ही आना चाहिए, यहां से रिंकल्ड आया तो ग्रीन ही आना चाहिए. नो, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. कोई भी कभी भी किधर से भी आ सकता है. तो इसलिए कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है. देखो 4 कॉम्बिनेशंस बन गए गैमेट्स के. यस और नो, 4 कॉम्बिनेशंस बने. यस, एंड दिस इज वन कैरेक्टर, दिस इज अनदर कैरेक्टर, दिस इज वन कैरेक्टर आर, दिस इज अनदर कैरेक्टर. और ऐसे ही फीमेल एग में भी डिफरेंट होगा, और जब ये फ्यूज होंगे तो वापस से पेयर बन जाएगा उनका. गेटिंग इट? सो दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो 3 लॉज है, तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना भी बहुत जरूरी है. फाइन. सो अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग्स ऑफ द टेक्स्ट बुक मैंने वो तीनों लॉज तुमको समझाया. ओके, नाउ बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, इतना सब उसने किया, उसका कुछ तो यूज होना चाहिए. सो एप्लीकेशंस ऑफ मेंडल्स लॉ. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मेंडल्स लॉ? देखो अगेन बुक से, a knowledge of the basic Mendelian principles gives us an idea about the new combinations of progeny of hybrids and enables us to predict their frequency. जैसे अगले जनरेशन में क्या आएगा, 1:2:3 के रेशो में, है ना, या 1:2:1 के रेशो में प्लांट्स आएंगे. सी किसको हेल्प होता है ये? जनरली एनिमल्स में ज्यादा काम का नहीं है. यस, इट इज हेल्पफुल for production of new variety of flowers. yes, it is helpful for production of new varieties of fruits. yes, कि अगला वेराइटी कैसा आने वाला है, what type of mango will be coming up, है ना. सी देखो, such information is great importance for both plant and animal breeders for producing better breeds.
या जो वेराइटी तुमको चाहिए वो कैसे लेके आए इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें हेल्प करता है। किस रेशो में कौन सा प्लांट आएगा, किस रेशो में कौन सा प्लांट चाहिए, कौन से एनिमल ब्रीड्स चाहिए। यस, फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है ना। इन एवरीडे लाइफ इट इज ऑफ नो यूज फॉर अस, एब्सोल्युटली नो यूज फॉर अस, है ना, कुछ नहीं कर सकते इसको, लेकिन रिसर्चर्स कैन डू अ लॉट। यस, एनिमल ब्रीडर्स हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ दिस एंड प्लांट ब्रीडर्स ऑल्सो हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ दिस, कि क्या करना चाहिए, किसका किसके साथ क्रॉस करो तो कौन सा वेराइटी आएगा, कितने प्लांट्स उस वेराइटी के आ सकते हैं, इन व्हाट रेशो एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो एग्जैक्टली उनको हेल्प होता है टू नो कितना प्रोडक्शन होगा, कौन सी वेराइटी का होगा, कौन से ब्रीड का होगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। फाइन। वन स्मॉल कॉन्सेप्ट इज ऑफ म्यूटेशन। या म्यूटेशन इज वेरी सिंपल। डेफिनेशन और एक एग्जांपल बता देता हूं। व्हाट इज म्यूटेशन? मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स, it can be artificially or it can be naturally too। आर्टिफिशियली हो सकता है जीन्स का मॉडिफिकेशन या नेचुरली हो सकता है जीन्स का मॉडिफिकेशन, है ना। नेचुरली कैसे? जैसे नेचुरली इट कैन बी ड्यू टू, जैसे एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब, नॉट एटॉमिक, लेट्स कॉल इट न्यूक्लियर। न्यूक्लियर बॉम्ब, हिरोशिमा, नागासाकी, यस। तो ये रेडिएशंस जो है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, दीज गो एंड अफेक्ट योर जीन्स। जब तक के जीन्स में मॉडिफिकेशन नहीं होता, सी जीन्स में मॉडिफिकेशन होने से क्या होता है, अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। यस, जैसे 4 legs या यस 11 फिंगर्स। 11 क्या 40 फिंगर्स भी आते हैं, 40 फिंगर्स, 30 फिंगर्स, है ना। हाइट ऑफ वेरी 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 स्मॉल हाइट, 2 फीट का आदमी, 2 फुट का इंसान, ऐसे कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। एक्समैन देखा है सबने? एक्समैन, कम ऑन, म्यूटेंट्स होते हैं उसमें, कैसा नो? उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है? दे हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स, हाँ कि नहीं? someone has a power of creating fire anywhere, someone has some power, someone has some power, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, म्यूटेशन से ऐसा नहीं होता है। म्यूटेशन से ये सारी चीजें हो सकती है। वो तो मूवी था, मूवी में कुछ भी होता है। सो म्यूटेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स ईदर नेचुरली या आर्टिफिशियली यूजिंग सर्टन केमिकल्स। यस, सी उसमें कुछ म्यूटेंट्स है। अगर एक्समैन मूवी देखोगे, या इफ यू हैव सीन एक्समैन 2, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सा पार्ट है मूवी का, है ना, तो उसमें वो दिखाया है जो वुल्वरीन है उसके जो 3 बड़े नेल्स होते हैं वो कैसे आया। यस, ऐसे हाथ में से 3 बड़ा निकलता है ना, करेक्ट, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड एज। सो ये कैसे आया उसके अंदर, ये दिखाया है ना। उसको पकड़ते हैं, उसको दे ट्रीट हिम विद सर्टन केमिकल्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो उसके जीन्स मॉडिफाई करते हैं। उसके जीन्स मॉडिफिकेशन से ही हैज गॉट दिस पर्टिकुलर वेपन। ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस, हाँ, मूवी है। बट देन व्हाट आई मीन टू से इज आर्टिफिशियली यू कैन मॉडिफाई द जीन्स टू गेट रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पॉसिबल है ना। सो दैट इज म्यूटेशन। सो म्यूटेशन से ऐसी चीजें पॉसिबल है, करेक्ट, क्लियर है। Now there is only one small portion of the chapter that is remaining, and that is sex linked inheritance. अब ये क्या होता है, कैसे होता है? See guys, एक चीज समझ लो, what is sex chromosome? सेक्स क्रोमोसोम में तुम्हारा X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम, हाँ कि नहीं? ये क्रोमोसोम है द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
अब ये क्रोमोसोम है, ऐसा कुछ रहेगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, फाइन। तो यहाँ पे एक जीन रहेगा, 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 yes or no? So the chromosome has got a lot of genes, yes? क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स है। लेट्स से दिस इज द वाई क्रोमोसोम, छोटू होता है, वाई क्रोमोसोम का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे एक जीन रहेगा, इधर एक जीन, इधर एक जीन। जीन में क्या होता है? कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तुम्हारे, यस और नो? तो जीन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज द 23rd क्रोमोसोम के कैरेक्टरिस्टिक, यस, दिस डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक स्पेशली इनहेरिटेंस ऑफ डिसऑर्डर। हमने इसका बेसिक्स डिस्कस किया था थोड़ा डिटेल में। इनहेरिटेंस ऑफ डिसऑर्डर्स इज डिसाइडेड बाय दीज जीन्स, है ना? जो तुम्हारा XY क्रोमोसोम है उसमें the inheritance of disorders, lot of disorders is decided by कौन से जीन्स रिसेसिव है, कौन से जीन्स इसमें से डोमिनेंट है, फाइन। सो एक मेल से आएगा, एक फीमेल से आएगा 23rd क्रोमोसोम, करेक्ट, और रिसेसिव डोमिनेंट जीन्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट योर टेक्स्ट बुक, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द डिसीज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, yes? How is it transferred from parents to children? लेकिन देखो इसमें दो चीजें होती है। एक को बोलते हैं डिसीज होना, या वन इज कैरियर। व्हाट इज अ कैरियर? कैरियर वो होता है, वन इज नॉर्मल एंड वन इज इन्फेक्टेड। ये तीन चीजें समझ लो, फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल मतलब लेट्स टेक दैन एग्जांपल ऑफ कलर ब्लाइंड, या कलर ब्लाइंड एक एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मल क्या होगा? नो कलर ब्लाइंड, द पर्सन इज नॉट कलर ब्लाइंड, यस। इन्फेक्टेड मतलब द पर्सन इज कलर ब्लाइंड, उसको कलर ब्लाइंडनेस है। व्हाट डू यू मीन बाय कैरियर? कैरियर वो होता है जो इट इज नॉट कलर ब्लाइंड, यस। नॉर्मल मतलब नॉट कलर ब्लाइंड, कैरियर मतलब नॉट कलर ब्लाइंड बट यस उसके जीन्स में कलर ब्लाइंडनेस का रेसेसिव ट्रेट बैठा हुआ है, बट हैज द रेसेसिव ट्रेट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, यस। सो ही इज अ कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। जरूरी नहीं है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा, लेकिन उसके बच्चे को हो सकता है क्योंकि ये कैरी कर रहा है, लेकिन इसके लिए वो रेसेसिव है, यस। उसके बच्चे के लिए इट कैन बी डोमिनेंट, है ना? चलो एक एग्जांपल से बताता हूं। सी गाइस, दिस इज द एग्जांपल एग्जैक्टली एज योर टेक्स्ट बुक, ठीक है? देयर इज अ मदर, ध्यान दो अच्छे से, जिसके अंदर XX क्रोमोसोम है, मदर XX, यस और नो? 23rd क्रोमोसोम की बात चल रही है, XX, फीमेल में XX होता है, एंड एक फादर है, मतलब देयर इज अ मेल, देयर इज अ फीमेल, यस। द फादर मेल जो है उनको कलर ब्लाइंडनेस है, तो उनका जो क्रोमोसोम है हम ऐसे डिनोट करेंगे X0 से, चलेगा क्या? X0 मतलब ये जो X क्रोमोसोम है गाइस, इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है वो डोमिनेटिंग है। बात समझ आई? दिस इज जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। ये जो X क्रोमोसोम है इनका 23rd क्रोमोसोम विच हैज अ पेयर XY, फाइन, लेकिन इसमें कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो एक्टिव है, मतलब द फादर इज कलर ब्लाइंड। तो हम मदर को बोलेंगे नॉर्मल, मतलब नॉट कलर ब्लाइंड, नॉर्मल है एकदम। एंड फादर मतलब सी देयर इज अ लेडी, देयर इज अ मैन, यस, दे गेट टुगेदर फॉर रिप्रोडक्शन, ये नॉर्मल है, ये कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है। अब देखो इनके जो बच्चे होंगे, यस, उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्लीज अंडरस्टैंड।
हमारा प्लमेट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखो मदर से क्या क्या आ सकता है, फादर से एक्स नॉट आ सकता है स्पर्म, एक्स नॉट ये कैरेक्टरिस्टिक आया, मतलब बेसिकली एक्स नॉट आ सकता है या तो वाई आ सकता है, एक्स क्रोमोसोम आएगा या तो वाई क्रोमोसोम आएगा, और मदर से या तो एक्स क्रोमोसोम या तो एक्स क्रोमोसोम, यस और नो। तो अब जो बच्चे होने वाले हैं यहां क्या होगा, एक्स एक्स, हाँ कि नहीं, एक्स एक्स नॉट, क्लियर है। यहां पे क्या होगा, एक्स वाई, यहां पे क्या होगा, एक्स एक्स नॉट, और यहां पे क्या होगा, एक्स वाई। मतलब पहले तो सन डॉटर है ये देख लेंगे हम लोग, ये है डॉटर, डॉटर होगी 50-50% चांस, सो 50% प्रोबेबिलिटी है कि डॉटर होगी, यस, और 50% चांस है कि सन होगा, एक्स वाई इज अ मेल, यस और नो। अब देखो इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई है, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल होगा, मतलब इसको कलर ब्लाइंडनेस कभी नहीं हो सकता, यस। यहां देखो ये भी नॉर्मल होगा, है ना, लेकिन लेकिन सी दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, यहां देखो द गर्ल इज अ कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, शी इज जस्ट अ कैरियर, बात समझो, कैरियर डॉटर है वो, और ये भी कैरियर डॉटर है ना। तो एक्स एक्स नॉट का मीनिंग क्या होगा, प्लीज अंडरस्टैंड इट केयरफुली, यहां लिखा भी है डॉटर्स हेट्रोजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल विजन, है ना। देखो यहां पे हम बोल रहे हैं कि ये मदर का यहां पे जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, मदर इज डोमिनेंट हियर। तो अगर मदर डोमिनेंट हो गई तो द डॉटर विल ओनली बी कैरियर, यस और नो। एक्स एक्स नॉट में हम बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है कि शी इज नॉर्मल, है ना, ये जो एक्स एक्स नॉट वाली है शी हैज गॉट अ नॉर्मल विजन, हो गई ना, पैदा हो गई, हमको दिख रहा है, उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो हम बोलेंगे उसको नॉर्मल विजन है, लेकिन देखो उसके जीन्स में अंदर शी इज अ कैरियर। और ऐसा क्यों हुआ, देखो इट इज अ हेट्रोजाइगस पेयर, हेट्रोजाइगस है ना, एक्स 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 नॉट इज हेट्रोजाइगस, यस, और डोमिनेंट कौन है, नॉर्मल विजन इज डोमिनेंट इन इट, यस, सो शी हैज गॉट अ नॉर्मल विजन बिकॉज मदर इज डोमिनेंट। किसी का भी ट्रेट डोमिनेंट हो सकता है, तो उसको फादर से डिसीज नहीं मिला, क्लियर है। सो नन ऑफ द चिल्ड्रन इज कलर ब्लाइंड, यस, बट द डॉटर्स आर कैरियर्स ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस डिसीज, कैरियर है उसके, मतलब उसकी जीन में कहीं तो है, yes, the defective allele is somewhere there in her genes, बात समझ आ रही है, तो कैरियर है फिलहाल सिर्फ। नाउ इफ वी कंसीडर अनदर केस, देखो यहां पे केस क्या है, लेट देयर बी अ कैरियर मदर, कैरियर मदर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉटर आई यहां पे, ये डॉटर बड़ी हो गई, ये डॉटर बड़ी हो गई, फिर इसकी शादी होगी, है ना, और इसकी शादी होती है एक नॉर्मल पर्सन से, नॉर्मल फादर, फादर मतलब मेल, डायरेक्ट फादर से शादी नहीं होगी, मेल से शादी होगी, राइट। सो सपोज शी इज अ कैरियर मदर, तो उसके जीन्स में है एक्स एक्स नॉट, हाँ कि नहीं, एक्स एक्स नॉट उसके जीन्स है, फाइन, और फादर का एक्स वाई है बिकॉज वो नॉर्मल है, कोई नया बंदा है, एक हैंडसम सा हीरो उसके लिए ढूंढ के लाया उसके पापा ने, यस, उसके पापा ने बोला देख यार मैं तो कलर ब्लाइंड हूं, आई एम कलर ब्लाइंड, आई विल सर्च अ वेरी नाइस ग्रूम फॉर यू, है ना, जो कलर ब्लाइंड नहीं होगा, तो उसके पापा उसके लिए एक ऋतिक रोशन हैंडसम लेके आए जो कलर ब्लाइंड नहीं है, फाइन, और इसके फादर को पता नहीं है कि इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, ठीक है ना, कहीं तो छुपा हुआ है रेसेसिव। अब देखो क्या होगा, when these two get along to reproduce, यहां से देखो फादर से x आ सकता है या y आ सकता है, मदर से x नॉट आ सकता है या x आ सकता है, हाँ कि नहीं, तो यहां क्या आया,
एक्स एक्स नॉट, क्लियर है। यहां से क्या आया एक्स, यहां पे एक्स नॉट एक्स लिख देते हैं, एक्स नॉट वाई, यहां पे आया एक्स एक्स, यहां पे आया एक्स वाई, क्लियर है। इंटरनली ये सारा प्रोसेसिंग हो रहा है। यहां पे तो आ गया सन, यहां पे भी आ गया सन। सी वेन एवर रिप्रोडक्शन हैपन्स 50-50% चांस होता है सन एंड डॉटर का, करेक्ट, और ये भी डॉटर है ना। अब ध्यान दो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है गाइस, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या, ये तो नॉर्मल है भाई, ये खुश हैप्पी, दिस गाय इज नॉर्मल, दिस गर्ल इज ऑल्सो नॉर्मल। लेट्स से वो 4 बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स से उनके 4 बच्चे होते हैं, है ना, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, फाइन। ये जो डॉटर है ये कलर ब्लाइंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यस। अगर ये वाला डोमिनेटिंग रहेगा बच्चों, है ना, तो कलर ब्लाइंड हो जाएगी, और अगर ये वाला डोमिनेटिंग रहेगा तो सिर्फ कैरियर होगी। तो लेट्स से कि ये वाला डोमिनेटिंग है, तो शी इज अ कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, यस। और लेट्स से इसमें ये मदर डोमिनेटिंग हो जाती है, तो ये हो जाएगा कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। आई बात समझ? मतलब बताओ ये किस पे गया है, ये बच्चा गया है अपने ग्रैंडफादर पे, हाँ कि नहीं। ग्रैंडफादर कलर ब्लाइंड थे, इसको भी कलर ब्लाइंडनेस हो गया, यस। ना ही उसके फादर ना ही उसके मदर कलर ब्लाइंड है यार, शी इज जस्ट अ कैरियर, ना ही फादर ना ही मदर, बट फिर भी उसको वो डिसीज आया, कहां से, प्रीवियस जनरेशन से। तो वेरी मच पॉसिबल है ना। और अब ये दोनों वंडर कर रहे होंगे कि अरे ना ही मैं कलर ब्लाइंड ना ही तू कलर ब्लाइंड, बच्चे कलर ब्लाइंड कैसे हो गए। एक बच्चा अनलकी, अरे अनलकी कुछ नहीं, दादा से आया है। आई बात समझ? और कुछ भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि ये गर्ल कलर ब्लाइंड हो जाए और ये सन ना हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कौन डोमिनेटिंग है, वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। ये सिर्फ एक केस है, एग्जाम्पल, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बात समझो, फाइन, यस। देखो केस 3, ये तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ दिया है उन्होंने। सी, थिंक ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैरिज बिटवीन a carrier woman x naught, she is just a carrier woman, yes, and a color blind man x naught y, this ये woman है and he is a color blind man, ठीक है। स्टार्टिंग वाला पॉसिबिलिटी यही है ना, सेम। सी, नहीं, स्टार्टिंग में नॉर्मल वुमन था और देयर वाज अ कलर ब्लाइंड फादर, फाइन। यहां पे कलर ब्लाइंड मदर था और नॉर्मल फादर, क्लियर है। सी, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस, मतलब बताता हूं मैं 2 मिनट पहले ये, ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है, फादर से डॉटर को आया, मदर से सन के पास गया, ऐसे समझ में आया। सी, यहां देखो, यहां मदर इज नॉर्मल, प्लीज अंडरस्टैंड क्रिस क्रॉस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि तुमको अभी जो नया बनाना है उसमें क्रिस क्रॉस की जरूरत पड़ेगी। मदर इज नॉर्मल, तो देखो सन इज नॉर्मल, बोथ द सन आर नॉर्मल। फादर इज कलर ब्लाइंड, द डॉटर बिकम्स कैरियर, हाँ कि नहीं, डॉटर बिकम्स कैरियर, बट मदर इज डोमिनेटिंग, क्लियर है। क्रिस क्रॉस, ये सेकंड वाले में देखो क्रिस क्रॉस, कैरियर कौन है, मदर इज कैरियर, है ना। कलर ब्लाइंड कौन हो गया, सन, यस, मतलब मदर से सन को आ गया। एंड द फादर इज नॉर्मल, द डॉटर आर ऑल्सो नॉर्मल, मतलब कैरियर है लेकिन कलर ब्लाइंड तो नहीं है ना, सो दैट इज नॉर्मल ओनली देन। सो वैसे ही अब थर्ड केस में वो बोल रहे हैं कि थिंक ऑफ अ पॉसिबिलिटी मैरिज बिटवीन अ वुमन, कैरियर वुमन एंड अ कलर ब्लाइंड मैन, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बर्थ ऑफ अ कलर ब्लाइंड डॉटर, क्या एक कलर ब्लाइंड डॉटर आ सकती है।
वर्क आउट द प्रोजिनी इन द फॉलोइंग पुनेट स्क्वायर। ठीक है, चल इसको ड्रॉ करेंगे जरा, ये बना देंगे फटाफट। कलर ब्लाइंड मैन, तो फादर से क्या आएगा x नॉट y, मदर से क्या आएगा x नॉट। ठीक है ना, x नॉट है तो या तो x या तो x नॉट आएगा। क्लियर है? तो यहां से देखो x नॉट, यहां से y मतलब x y, दिस इज x नॉट। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा x नॉट y। फाइन, लेट्स क्विकली राइट डाउन कौन क्या है। ये है डॉटर, ये है सन, ये है डॉटर और ये है सन। यस, नाउ इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ बर्थ ऑफ अ कलर ब्लाइंड डॉटर? ऑफ कोर्स, ये देखो बोथ रिसेसिव, मतलब दोनों का कलर ब्लाइंडनेस का उसमें ट्रेट आ चुका है। यस और नो? यस, सी दीज आर बोथ रिसेसिव, बोथ रिसेसिव। इसका भी कलर ब्लाइंडनेस वाला उसमें आ गया, इसका भी कलर ब्लाइंडनेस वाला आ गया, तो शी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड, डेफिनेटली कलर ब्लाइंड रहेगी वो, डेफिनेटली। यस, इस डॉटर के बारे में क्या बोल सकते हो? ये डिपेंड करेगा भाई, ये डिपेंड करेगा कि किसका डोमिनेटिंग है, मदर का डोमिनेटिंग है या फादर का डोमिनेटिंग है। प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, डोमिनेटिंग रिसेसिव जो स्मॉल लेटर वगैरह है वो दिखाने का तरीका, यहां हमको नहीं पता कि कौन डोमिनेटिंग रहेगा, है ना, इसलिए वी कैन नॉट राइट एनीथिंग यहां पे। ये तो डेफिनेटली नॉर्मल है, हाँ कि नहीं? डेफिनेटली नॉर्मल है। अब ये भी हमको नहीं पता, या तो कैरियर हो सकता है या तो नॉर्मल हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो यहां भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे, नहीं पता, यहां भी ब्लैंक छोड़ेंगे, नहीं पता। लेकिन ये तो डेफिनेटली कलर ब्लाइंड है और ये बच्चा डेफिनेटली नॉर्मल है ना। देखो यहां पर भी, यहां पे इन्होंने दे दिया है कैरियर डॉटर कलर ब्लाइंड सन, है ना, इसलिए हमने इसको कैरियर बोला और हमने कंक्लूड क्या किया कि अच्छा मतलब मदर डोमिनेटिंग रहेगी, या सॉरी फादर डोमिनेटिंग रहेगा, इसलिए वो बस कैरियर है ना, उसको कुछ हुआ नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। और सी हियर ऑल्सो दे हैव आस्क्ड अ वेरी क्लियर क्वेश्चन, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ बर्थ ऑफ अ कलर ब्लाइंड डॉटर? तो यस, डेफिनेटली कलर ब्लाइंड डॉटर आने ही वाली है, तो पॉसिबिलिटी तो है ही है, करेक्ट। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब सी उनको दो टाइप की डॉटर हो सकती है, एक ये डॉटर हो सकती है, एक ये डॉटर हो सकती है, करेक्ट। अगर ये वाली डॉटर होती है तो डेफिनेटली वो कलर ब्लाइंड है, लेकिन दूसरी अगर ऐसी डॉटर हुई जिसमें एक ये वाला एक्स है और एक ये वाला एक्स है, तो वो डिपेंड करेगा। अगर ये एक्स डोमिनेटिंग है तो कलर ब्लाइंड नहीं रहेगी, और अगर ये एक्स डोमिनेटिंग है तो वो भी कलर ब्लाइंड रहेगी। सो डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, पॉसिबिलिटी है, समझ में आया? यस, एंड दैट इज हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक हुई, एक्स क्रोमोसोम के अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है उसका एलील कौन सा डोमिनेटिंग है, कौन सा रेसेसिव है। यस, एंड दैट इज हाउ इट इज ऑल डिसाइडेड। आई बात समझ? एंड दैट एंड्स द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, आई होप तुमको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एकदम। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू क्लैरिफाई थिंग्स कि तुमको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आए कि क्या हो सकता है। अब ऐसे कलर ब्लाइंडनेस की जगह गाइस यहाँ पे कोई भी डिसीज उठा लो यार, सेम चीज हो सकती है ना। यस, कोई भी क्रोमोसोम से हो सकती है। हमने यहाँ एक्स क्रोमोसोम कंसीडर किया स्पेशली क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम से आ सकती है। टॉपिक का नाम ही है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उससे रिलेटेड इनहेरिटेंस क्या क्या हो सकता है। ऐसे बाकी क्रोमोसोम्स का भी सेम टाइप का इनहेरिटेंस हो सकता है। यस और नो? दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इट। क्लियर है? या सो दैट एंड्स द चैप्टर गाइस। नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, इफ नॉट आई विल टेल यू। प्लीज समझो बात को अच्छे से, क्या क्या करना है।
बचा कुचा चैप्टर रीड करो, रीड द एंटायर चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड रीड करो, कुछ नहीं समझा तो पूछो. एंड यस, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी. ठीक है, तो आई होप यू गाइज हैव द गाइड. यस, व्हाट इज द मेथड? क्वेश्चन रीड करो, खुद से आंसर बोलो, क्वेश्चन रीड करो, खुद से आंसर बोलो, एंड रीड द आंसर फ्रॉम द गाइड ऑल्सो, कि क्या आंसर सही है ना. देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोसेस चेक, प्रोग्रेस चेक होता है गेस, टेक्स्ट बुक में होता है ना, प्रोग्रेस चेक 1, प्रोग्रेस चेक 2, उसके आंसर्स प्रिपेयर करोगे, और एंड में जो एक्सरसाइजेस है उसके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करो पहले. तो प्लीज डू इट, है ना. 1 वर्ड 2 वर्ड के आंसर्स होते हैं, 1 लाइनर होता है बायो में, बट बहुत सारी चीजें हैं रिमेंबर करने के लिए, टू रिमेंबर. सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट ऑन द सेम डे. Yeah, so that's it guys, see you, take care, bye.